You want to transform yourself from what you are. The important thing is what you are, not the transformation itself. Because when you say कि मुझे transform होना है, you are also saying you are ignoring what you are. Right? What I say, that I want to be transformed into a better person. I want to be transformed into a better writer, into better investor, content creator, business person, whatever. That is your goal. Want to transform into this. But who are you? What you are right now in this moment. Because transformation happens in the now, not in the future. माइंड जिस तरीके से रिवायर हुआ है वो ये कहता है क्योंकि फ्यूचर में होगा, कल मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा, बट कल भी जो है जब वो आता है वो अभी बनकर आता है, वो नाउ बनकर आता है. द टुमारो, when the tomorrow occurs, it occurs in now, in present. What I'm trying to say is, in this present, अगर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको घटित कराना है, you want to make it happen, you have to focus all your attention into this moment, into the now, because transformation only happens in the now. Why I'm saying this? क्योंकि जैसे ही एक ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड आपके दिमाग में आता है, आप ये होंगे या मैं हो चुका हूँगा, राइट? बट उसी चीज़ में ये भूल जाते हैं कि हम हैं क्या, क्योंकि जो अभी हम हैं वो नाउ में है, इन द प्रेजेंट. ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हम फ्यूचर को देखने लग जाते हैं, कल मैं ये हो जाऊंगा, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं ये हो जाऊंगा. वहीं पे प्रॉब्लम लाई करती है, क्योंकि वो 3 महीने 6 महीने हटा दो वहां से दिमाग से एंड थिंक अबाउट नाउ व्हाट यू आर. व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग सो मच ऑन दिस? बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगा ही तब जब आप ये जानेंगे कि आप क्या हैं, व्हाट यू आर, एंड देन what you want to become, what you want yourself to be transformed in, यानी कि आप होना क्या चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर it all starts with self discovery, knowing what you are. Suppose you are not productive, you are wasting so much time here and there, and you want to be productive, you want to utilize your time. So जैसे ही मैं utilize करना चाहता हूँ टाइम, लेकिन मैं हूँ कौन? मैं वो हूँ. What is my identity? The game is about identity. What is my identity? My identity is someone who wastes time, who scroll Instagram, or who just talks too much. And I want to stop this thing. I want to be productive. This is who I am. Now this identity who wastes time wants to do a act of someone who doesn't waste the time. यानी कि हिंदी में समझते हैं कि मैं वो हूँ जो समय व्यर्थ करता है, वेस्ट करता है, और जो मैं हूँ वो कुछ ऐसा करना चाहता है जो सिर्फ एक वही इंसान कर सकता है, या वही आइडेंटिटी वाला इंसान कर सकता है जो टाइम वेस्ट नहीं करता है. दिस टू थिंग, द स्प्लिट, और ये दोनों चीज़ आप भी के भीतर हैं, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, जो आप हैं और जो आप होना चाहते हैं. एंड जब भी किसी भी तरीके का स्प्लिट या कन्फ्लिक्ट आपके अंदर अराइज होता है, यू विल ऑलवेज लूज, हमेशा हारे जाओगे. इट्स सेम थिंग हैपन. सपोज यू वांट टू बिकम समवन जो मैस्टरबेट नहीं करता, अपनी सेक्सुअल एनर्जी वेस्ट नहीं करता, आप वो बनना चाहते हैं. ठीक है, आप मैस्टरबेशन रोकना चाहते हैं, फिटनेस की जर्नी में हैं, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में हैं, तो इस वजह से यू वांट इट टू स्टॉप, राइट? सेम थिंग अप्लाइज हियर. Identity of someone who masturbates, चाहे आप once in a week करें, once in a month करें, but who's someone who does it, right? He's wired that way. इतनी बार करा है, repetition इतनी बार करा है कि अंदर masturbation, the case of masturbation, there is that pleasure, orgasmic pleasure, वो भी जुड़ रखा है उस एक्टिविटी के साथ, masturbation के साथ, तो you are wired, you do it, but you want to become someone who doesn't do it. Again the split. So जब you feel that sexual urges inside of you and you want to touch yourself, you want to experience the pleasure, ठीक है, this is one thing, this is who you are, who you want to become someone who doesn't do this, and the conflict arises in you and you will lose, you will end up doing masturbation.
सो जब भी किसी भी केस में आपको लगे कि कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है मेरे अंदर, कोई भी ऐसी एडवाइस, कोई भी ऐसी बुक की एडवाइस या कोई भी मिलियनर बिलियनर या मेरी खुद की एडवाइस आपके अंदर एक स्प्लिट क्रिएट कर रही है, देन दैट एडवाइस इज़ नॉट फॉर यू। उसको वहीं ड्रॉप कर दो। शायद वो एडवाइस सही हो लेकिन आप गलत तरीके से ले रहे हो, वो स्प्लिट क्रिएट हो रहा है, वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। वो कन्फ्लिक्ट की वजह से ही यू आर डिप्रेस्ड, यू मे गेट डिप्रेस्ड, यू आर ऑलवेज वरीड, एग्जॉस्टेड, बिकॉज इतना ज़्यादा एनर्जी तो कन्फ्लिक्ट ही खा जाएगा कि करूँ नहीं करूँ, मैं ये नहीं करना, ये इट्स ऑल जस्ट कन्फ्लिक्ट, देयर इज नो रिलैक्सेशन इनटू इट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। ये सेकंड चीज़ है कि व्हाट यू वांट टू बिकम, उसको आपको पूरा ड्रॉप करना पड़ेगा। जस्ट ड्रॉप इट। Don't even think about becoming someone, right, who masturbate or who doesn't masturbate, or don't think about someone who doesn't waste time. जो भी आपका ट्रांसफॉर्म आप जिस भी तरीके से होना चाहते हैं, think about who you are, जो आप हैं उस पे सोचना है कि मैं क्या हूँ, मेरी हैबिट्स क्या है। सपोज मैंने कहा कि इन मैस्टरबेशन केस कि यू आर रीवायर्ड एंड यू आर वायर्ड दैट वे, एंड रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करिए बिकॉज इतने सालों से आप कर रहे हैं, एंड उसके साथ एक प्लेजर भी जुड़ गया, ऑर्गेज़मिक प्लेजर, जो कि बहुत खूबसूरत है। सो अब मुझे उससे निकलना है, बट इट इज़ सो फैसिनेटिंग, इट इज़ सो ग्रेविटेटिंग टू, तो मैं कैसे निकलूँ? तो वही वाली बात है कि वो हो गया ना कि एक तो यहीं फंसा हूँ और निकलना है, कन्फ्लिक्ट हो गया, तो मुझे ये हटाना है, मुझे देखना है कि मैं जहाँ पे वर्ड है अंडरस्टैंडिंग, आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि होता क्या है, लाइक व्हाट इज़ द सेक्शुअल एनर्जी जो मेरे अंदर अवेकन होती है, व्हाट इज इट, व्हाई इट इज, एंड व्हाई आई एम वायर्ड लाइक दिस, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन ऑर्गेज़म हैपेंस, व्हाट हैपेंस टू माय बॉडी, राइट। एंड इस है क्या, व्हाट इज सेक्सुअल एनर्जी, इसके बियॉन्ड क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, किन लोगों ने किस तरीके से समझाया है। व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी अबाउट दिस सेक्सुअल एनर्जी, आई फाउंड सो मेनी गुड टेक्स्ट एंड बुक अराउंड दिस टॉपिक। आई कल्टिवेटेड, पहले लेसन तो यही था कि जो तुम्हारे बीच कन्फ्लिक्ट है उसे हटाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिमूव्ड कन्फ्लिक्ट्स जो मेरे अंदर अराइज हो रहे थे। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट सेक्सुअल एनर्जी, दैट इट इज़ रॉ एनर्जी, लाइफ फोर्स, एंड हाउ टू ट्रांसफॉर्म इट। हालांकि ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, सून आने वाले टॉपिक, आने वाले वीडियोज़ में आई विल टॉक अबाउट सेक्सुअल एनर्जी एंड हाउ टू ट्रांसफॉर्म इट। एंड वो प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत है क्योंकि जो वीडियोज़ आएंगी उस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम करा है, एंड माई ओन स्टोरी इज़ देयर। सो यस, बट यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करें हाउ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला नियम ये है कि आप ये जानें कि आप है कहाँ और क्या है। जैसे कि आपने जाना कि आप मैस्टरबेशन के टाइम नहीं होता है, सपोज एग्जाम्पल हम यहाँ पे टाइम का ले लेते हैं, वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो व्हाट हैपेंस, वेयर यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम, what you are doing, why you are doing, what happens when you do it, what is the feeling, how do you feel after doing it. The game is कि जब आप ये अंडरस्टैंड कर रहे होंगे अपने बारे में, तो एक तरीके का गेम है, इसके कुछ रूल्स हैं। जब आप ये अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, पहला चीज़ कि आप अपने दिमाग में बैक साइड ऑफ माइंड ये नहीं लेके चलेंगे कि मुझे वो बनना है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, जो सेकंड चीज़ है जो आप बनना चाहते हैं उसको ड्रॉप भी कर दो। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखो कि जो आपको बनना है वो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, और जो आप हो बस उस पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। चाहे जितने ही उसके अंदर फ्लॉज हैं, गलतियां हैं, कमियां हैं, डार्कनेस है, कुछ भी है, जो भी हैं, आप उसको समझना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी हॉन्टिंग। व्हेन यू से यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, यू आर एक्चुअली सेइंग, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग दैट आई वांट टू एस्केप फ्रॉम व्हाट आई एम। द एस्केपिज्म इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, हो सकता है आप escape करके you build a great body, you wrote a book, but it is again escapism. You escaped from what you are and it will come back. वो जो आप है वो कहीं जा नहीं रहा. What you are exist within you and it will again come and haunt you. अगर आपको, क्योंकि it will haunt you. We all carry some darkness, flaws, जिसको हम फेस नहीं करना चाहते, तो हम उनसे भगते हैं। You know, हम सबकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा सफरिंग्स लेकर के आते हैं, ट्रेजेडीज़ लेकर के आते हैं, एक डार्क पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मे बी इट कैन बी ब्रेकअप, इट कैन बी दैट यू लॉस्ट योर फादर, यू लॉस्ट योर मदर, वट एवर, इट कैन बी एनीथिंग, एंड द सफरिंग्स फोर्सेस यू टू सी दोज
dark side of yourself, to see those flaws, to see, वो फोर्स करता है कि आप देखें कि आप हैं क्या. एंड इन द सफरिंग्स हम क्या करते हैं, वी स्केप, चाहे वो वी स्केप फ्रॉम दैट थिंग थ्रू सेक्स, थ्रू दारू, अल्कोहल, ड्रिंक्स, पार्टी, क्लबिंग, व्हाटएवर इट कैन बी. इन अ गुड सेंस, लाइक ये तो हमने पार्टी सेक्स बोल दिया तो ऐसे लगे नहीं नहीं मैं ये नहीं करता. आई गो टू द जिम, आई गो टू आई स्टार्टेड स्पेंडिंग सो मच टाइम इन टू वर्किंग कि मैं अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ. इज इट अ गुड थिंग? नो, स्टिल हाँ दिखने में लगेगा, आप यू विल मेक गुड मनी, यू विल हैव अ गुड बॉडी, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फुलफिलमेंट, हीलिंग and transformation in real, like the real definition of transformation. So how can you feel it कि कैसे escapism transformation की तरह लगता है. You see I have transformed it. It's a beautiful thing. Again, the outcome of escapism, अगर आपको एक अच्छी body build, you build a great body, you build a good business out of that escapism, it is a good thing. But you need to be aware that it was escapism, not transformation. राइट. एंड अगर आप escape कर रहे हैं दारू, सेक्स, इन सब चीज़ों से, वो तो होना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल वी डू. बट अगेन यू आर डूइंग इट, इफ यू आर डूइंग इट, यू नीड टू बिकम अवेयर दैट आई एम escaping through sex, alcohol, partying, or I am escaping it through something like gym or building businesses, companies, whatever. But it's still escapism. In this video, I'm going to try to teach you what is transformation. So अभी हमने क्या समझा कि escapism transformation नहीं. Transformation is facing yourself, seeing yourself, understanding yourself, discovering yourself, not running. क्योंकि मैं ये हूँ and I'm running from this कि मैं ये हूँ. I want to be this. You can't be that जो भी आप बनना चाहते हैं without understanding, accepting what you are. And एक beauty होती है वहाँ पर जब when you start understanding and accepting yourself, you find out sometimes क्या होगा कि you will find out कि जो आप बनना चाह रहे थे वो आप चाहते ही नहीं हो. It is amazing. I have experienced this कि जो मैं होना चाहता हूँ वो कभी मैं चाहता ही नहीं था. It just came to my mind. I saw other people, so I just thought कि अगर मैं वो बन जाऊँगा तो I would feel comfort. और फिर सपोज करते हैं कि मैं वो बन जाता हूँ. Suppose I want to become something और मैं escape करके या किसी भी तरीके से I became that. पर अब मुझे वो fulfillment feel नहीं हो रहा, मुझे comfort feel नहीं हो रहा. That is a lie. That is what I'm saying कि अगर आप escape करके, जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इन अ गुड वे, जिम हो या कंपनी हो, वो बना करके भी आप जब कर लें और आपको लगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एंड इनसाइड यू आर फीलिंग दैट सेम एम्प्टीनेस, वो अंदर से सेम ही खालीपन महसूस हो रहा है विच यू आर फीलिंग पहले, तो फिर कहाँ हुआ ट्रांसफॉर्मेशन? बाहर आपने चीज़ें करी लेकिन अंदर कुछ नहीं बदला. सो द ब्यूटी इज जब when you start finding yourself, when you start accepting yourself, you find out what you are really meant to become. You find मैंने कहा कि you find about your darkness, of course, but the darkness becomes the light, and you also find out your light, your magic, your blessings. Of course, when you find your blessings, you also find the things you are very wrong, the things very, very dark. But don't run away from the dark. Dark is light. Light is dark. You have to experience it. ये थोड़ी पैराडॉक्सिकल बात है कि जो डार्क है वो लाइट कैसे, लाइट डार्क कैसे. But that accepting your darkness is the way towards your blessings that God, divine, universe, whatever you want to call it, blesses you. We all are blessed. We all are blessed with our uniqueness. We all are unique. Every human being on this earth is chosen one. Like he is chosen, that's why he's here. But the thing is, does he know that? Does he experience that he's the chosen one? Many of you are not aware of this thing, that they are chosen ones. Because if you are, then you would be on a different path. Then you would not be wasting your time. Then you would be on a journey to know yourself. You would be on a journey to serve people. Because we all are blessed. Blessed to serve. Because that's why we are blessed. Since we all are chosen, the existence has chosen all of us, then it is our responsibility, it is our duty to know who am I. कौन हूँ मैं, क्या हूँ,
कि when you would know who you are, when you start discovering yourself, what you are, then magic will start happening. You will start knowing कि तुम्हें क्या करना है, करियर क्या करना है, क्या चीज़ करनी है, कैसे नहीं पता चलेगा वो कैसे. the how will fall into place when you start taking steps. इसका मतलब ये भी नहीं है कि if you are, remember, the chosen one sounds very fascinating. When I say that I'm chosen one, when I have experienced I'm chosen one, then there are more responsibilities on me. Then it means कि मैं ज़्यादा struggle करूँगा. इसमें कोई fascinating सुनने में लगता है कि I am chosen one. We all are chosen one. But the thing is, when you start experiencing it, you're chosen one. Then get ready for the destruction. Then get ready for everything, detachment. Every lesson will be on your way. Like you are on a very crazy path. Like it's climbing on the mountains. So बहुत crazy हो जाएगा. बहुत सारे lessons आएंगे, detachment के lessons आएंगे, dispassion. These are all things जो मैं अपनी journey में सीख रहा हूँ. वो सारे lessons आएंगे. You will lose the people also. Your loved ones. सुनने में, even if it's scary, but it is not scary. Like सुनने में ऐसा लगता है I will lose people, but you just know you're knowing yourself. You lose that attachments, not the people. Now it's on the people. जो वो रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते, and you become what you are. The one thing I'm very sure, when you walk on this path of knowing yourself, accepting yourself, you become very happy, you become fulfilled, you become so good, and like going under say goodness, that love flows within you. So that is important. So ये है शुरुआत ट्रांसफॉर्मेशन की. क्योंकि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. When you start knowing yourself what you are, तो होगा क्या? Transformation is death, is dying of what you are. जब आप जान जाते हैं कि मैं ये हूं, क्योंकि जब आप देखो, जो absolute जानना है कि आप कौन हैं, then you are God, then you are universe. That in Sanskrit what we say, अहम ब्रह्मास्मि. लेकिन ये कह देने से, थोड़ा सा हम डीप जा रहे हैं, ये कह देने से कि अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो जाता. क्योंकि अगर मैं ऐसे ध्यान लगाऊं और दिमाग में बोलूँ अहम ब्रह्मास्मि, it is not going to happen. You are universe. But the thing is, have you experienced yourself in your being that you are the universe, that you are the God? Have you? The answer is no. नहीं. Like experiencing through your heart that I am the universe. You feel कि हाँ, तो जो स्मृति है, वो जो एक्सपीरियंशियल है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस कहता है कि मैं यूनिवर्स हूँ. और शायद आप किसी और अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोले. आप अगर भोजपुरी हैं तो भोजपुरी में बोले, या किसी भी लैंग्वेज में, वो अपनी लैंग्वेज में निकलता है, अपनी मदर टंग में निकलता है जो आपकी है. तो हम ब्रह्मास्मि संस्कृत वर्ड, संस्कृत सेंटेंस, जो भी श्लोक, व्हाटएवर इट इज. सो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस नहीं करें. बट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब हम सब वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, वी वुड बी एक्सपीरियंस दैट वी ऑल आर गॉड. You are God, I am God, I am the universe, you are the universe, we all are one. See? but ये एब्सोल्यूट जानना है, यही जर्नी है, यही एनलाइटमेंट है, यही बुद्ध कह रहे हैं, यही ओशो कह रहे हैं, यही महावीर कह रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को जानने वाली बात जो है. लेकिन हम जब भी शुरुआत करते हैं यहाँ पर, तो जैसे हम जानने लगेंगे तो हम देखेंगे हमारे अंदर फियर्स हैं. ठीक है, सपोज करो मैंने क्या बोला कि स्टार्ट नोइंग योरसेल्फ, एंड यू वेंट ऑन दिस जर्नी एंड यू रोट कि यार दीज आर माय फियर्स. वो फियर्स आप नहीं हैं, बट जैसे ही जर्नी स्टार्ट करी, एटलीस्ट नाउ यू नो दीज आर द फियर्स. क्योंकि मैं नहीं हूँ, बट यस आई हैव दिस फियर्स. यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे उस रिवोल्यूशन की स्टार्ट हो गई है. नाउ यू नो द फियर्स. अब नाउ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू फियरलेस, राइट? उस फियर्स को ड्रॉप करना है. हियर कम्स द मैजिकल पार्ट कि अब हमको पता चल गया है कि ये फियर्स मैं नहीं हूँ. सो व्हेन यू स्टॉप आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद द फियर्स यू हैव, then the transformation has started happening. Then the death started happening. Death किसकी हो रही है? Death is something, जब भी आप किसी चीज़ को lose करते हैं, death is death. Even if you lose your job, death of the job. Lose someone, death of the relationship. Like in relationship खत्म, जो भी चीज़ खत्म is death. So your death, जो fears हैं, now the transformation happen. यानी कि
the dying of those fears will take place. And in dying, you experience immense pain. You experience suffering. So get ready for that suffering and pain. That's why I said when you walk onto this path, you will experience so much. You will experience so much suffering. You will experience pain. But you still experience it with a smile on your face, because you know that whatever is dying, the fears are dying and not me. But it haunts you, of course. So you have to be aware when the fears, the desires, the lust, when it starts dying, you have to become aware and calm that these are not me. You have to meditate on your fears. What is mean here is meditate का क्या मतलब है? ध्यान में you become aware कि जो मैं हूँ, like these fears are not me. What if suppose you are feeling fear in your heart, so just feel that here आपको heaviness feel हो रही है, कभी भी body में भी the fears reflecting your bodies too. So just see it. Don't say it's me. Just say I have this is fear, this is here. Name it whatever, but don't label it. Name it but don't label it. Name it यानी कि you can just name the fear like XYZ, but labeling comes with definition. Like ये fear बहुत गलत है, ये fear बहुत अच्छा है, या fear नहीं होना चाहिए, या goal oriented के fear मुझको नहीं चाहिए, and blah blah blah, these kind of things. So labeling नहीं होनी चाहिए. Just name the fear XYZ, don't label it कि अच्छा है गलत है, and it will start dying itself. Because why that fear is existing in the first place? Because of you. You give so much energy to that emotion that becomes fear. Fear पे भी बहुत लंबी क्लास हो सकती है, बट यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे दो टॉपिक जो आगे वीडियो में बात करूँगा, सेक्सुअल एनर्जी एंड फियर. तो यहाँ पे हमने फियर को थोड़ा सा समझा है कि आप कैसे फियर ड्रॉप करेंगे. वन थिंग आई कैन टेल यू, इफ़ यू हैव फियर, जस्ट फील इट, नेम इट, डोंट लेबल इट, एंड just see it, witness it, become aware, breathe into it. That's it. Don't छेड़ो मत उसको. It will drop itself. Don't rationalize it कि क्यों है fear, ये कैसे हुआ. Just it will drop. But what is actually happening? The death of fears are happening. So transformation is dying in a sense. So we will experience the dying. And in my life, transformation is always happening. It's always happening. I become something, and then I know that this is something I have to drop. Then again start dropping is dying, and then I experience it, and then I understand. So my blessing is transformation. Now when I started knowing myself, my blessing is transformation, but I'm not very good with timing, consistency, daily effort, structures. So I'm very good at with okay, this is something I need to become. This is how to know myself. So when I started knowing myself, I found my challenge that I have to, become consistent. Now consistent के भी deeper layers आए कि मैंने ये समझा कि मैं consistent क्यों नहीं हूँ. Because I think too much, I strategize too much. एक ही प्लान को मैं बहुत strategize करता हूँ. I try to make it so much perfect. Many of you relate with it. And उस सब strategizing में मैं लूज कर देता हूँ उसको करना. And the strategies are very good, very great. So I'm good at strategizing but not at implementing. So what I'm trying to do, मेरे को बनना क्या था? Someone who values time, productive, very good. But मैं यहाँ सीख क्या रहा हूँ? ये सीख रहा हूँ. तो मैंने जब खुद को जानने लगा, उसको ड्रॉप करा, तो what I started knowing about myself कि I am strategic but I'm not good at implementing, right? So what क्या है यहाँ पर? और भी डीप जा सकते हैं कि जब आप एक्शन लेने का टाइम है, सपोज स्ट्रेटजी हो गई है एंड एक्शन लेने का टाइम है, व्हाई आई एम नॉट एबल टू टेक एक्शन? दैट्स द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ. डोंट फाइंड इट इन बुक्स, इन कोर्सेज. सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री जितनी भी है, दे हैव डिस्ट्रॉयड द आइडिया ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. डोंट गो फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, गो फॉर सेल्फ डिस्कवरी. सो आई फाउंड आउट कि मैंने जब बहुत स्ट्रेटजाइज कर लिया है, सब कुछ रेडी है, दिस इज जस्ट माई, दिस इज समथिंग आई एम शेयरिंग, समथिंग ऑफ माई ओन थिंग. डोंट टेक इट. You need to see it in yourself, inquiry yourself, know it by yourself. But I'm just sharing so that you know how it took place in my life. So मैंने जब strategize कर लिया है, and उसके बाद now I need to take action. I'm not able to take action. Why? Number one is when I found out, when you become calm and silent, तभी आप ये ढूंढ पाएंगे. It doesn't happen in noise. So यहाँ पे एक और चीज़ lesson ले लीजिए. When you are trying to know yourself, when you're trying to accept yourself, it happens in silence. In silence, you will know.
सो लर्न टू बिकम साइलेंस. 10 मिनट 15 मिनट शांत बैठ जाइए, अपने थॉट्स को देखिए, अपने हार्ट बीट्स को देखिए, अपनी ब्रीथ को देखिए, वट एवर हैपनिंग टू यू उसको देखिए, जो भी भीतर हो रहा है उसको देखिए. दैट इज़ बीइंग साइलेंट. सो इन दैट साइलेंस आई फाउंड आउट अबाउट माई सेल्फ दैट मैं इतनी स्ट्रेटेजाइज कर लेता हूँ जो कि बड़ी कूल एंड सेक्सी होती है, जो कि सच में अच्छी होती है. उस स्ट्रेटेजाइजिंग में मैं ऐसे फील करने लगता हूँ कि ये तो हो ही गया ना काम, ये तो हो ही जाएगा आराम से. अरे वाह, दैट फीलिंग कि काम हो ही गया है, जो कि स्टार्ट भी नहीं हुआ है क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है. तो वो जो फीलिंग है वो मेरे को सेफ रखती है कि हाँ भाई ठीक है, और उसकी वजह से मैं एक्शन नहीं ले पाता. दिस इज़ व्हाट आई फाउंड अबाउट माई सेल्फ देन आई वर्कड ऑन इट. और इसमें और भी चीज़ें हैं कि हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम टेकिंग एक्शन. सो सबकॉन्शियस माइंड स्टॉप्स इट. सबकॉन्शियस माइंड पे भी बहुत सारी बातें हो सकती है जो कि हम आने वाले वीडियोस में करेंगे. तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि नोइंग योर सेल्फ, फाइंडिंग योर सेल्फ, कैसे आपको एक डॉट से दूसरा डॉट कनेक्ट होता है, फिर तीसरा डॉट कनेक्ट होता है, ऐसे कनेक्शन बनता है. देन यू नो योर सेल्फ एंड देन द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिकॉज नाउ यू नो what things will die, what things will drop. जब वो चीज़ें ड्रॉप होती रहती हैं, इंट्यूटिव स्ट्रेंथ बढ़ती है आपकी. यू वुड जस्ट नो, यू वुड फील इट इन योर हार्ट कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ क्यों नहीं हो पा रही है. So writing, what happens when you start writing your thoughts and fears, desires, whatever happening, in the journey of knowing yourself, please write it. Many of you will say, I'm not a good writer. I don't need a good writer. You don't have to be a good writer. You are just writing yourself. And it is very important to write yourself. You will think, but thinking बहुत cluttered हो जाती है. सोचो. Just make diagrams, write it. I write a lot. I have so many diaries, books. I write a lot about myself and it helps me. It helps me so much to find myself, to find my strength, to find my weaknesses, to find and embrace my darkness and how to transform that darkness, because knowing your darkness is the very important thing in your life. And I'm going to make complete video on this topic, how to know your darkness and what is darkness. And so it will get very interesting because we will connect it with Ma Kali in Hinduism. Kaise Ma Kali, it's about darkness, and Kal Bhairav is about darkness, and you are the Kali, you are the Kal Bhairav. You experience darkness, whatever you experience darkness, it's in yourself, is nothing but God. So you have to see it through that lens. It will be very interesting. But यहाँ पे हमने transformation समझा. So it starts with what you are. Okay. Then what you are में you would know what you are meant to become. I am not saying what you want to become, what you are meant to become. You would know. And जब तुम्हें पता ही चल जाएगा मैं ये होने के लिए पैदा हुआ हूँ, then why you would not want to become that? See? यानी कि जो fake desires हैं, जो illusionary desires हैं, illusionary desire to become something, वो drop हो जाती है इस process में, खुद को जानने के process में वो drop हो जाती है, and you would feel and know what you are meant to become. फिर क्या है, जो भी आप बनने के लिए हैं, बनने के लिए आए हैं, whatever you are meant to become, वहाँ की भी जर्नी है. फिर हम उस पे आएंगे कि now this is what you are meant to become. Okay? This is what you are. This is what you are. This is what you are meant to become. अब ये split नहीं है क्योंकि this is what you are, you know. And ये जो आप हैं, what you are and what you meant to become is the possibility of what you are. मैं नहीं कह रहा what you are meant to become आप एक ही हो सकते हैं. Maybe you are meant to become an actor, writer, right? Actor, director, कुछ creative. उस creative में 4-5 चीज़ें आ गई, ठीक है? And you choose something, one, कि मैं ये बनूंगा because it fascinates me more. The different profession that you could be are the possibilities of what you are. Suppose I'm a writer. I write. I felt that I can write the movies, then why I can't direct it? Then I felt that if I can direct it, why I can't be the actor? See what's happening? Writer, director, actor. You can be everything if you want to be, but everything नहीं हो पाता, but you can be various things. वो various things क्या है? अगर आप ये खुद को जान जाए what you are, ये इसी की possibilities हैं, different possibilities. ये और डीप चला जाता है कि and at a भी हो सकता है. समझे इसको कि जब आप इस चीज़ को खुद को बहुत ही जान जाएं, यानी कि उस लेवल का जान जाए where you are God, जब उसको टच कर पाए, then you can become anything because you are everything and nothing. अभी you are everything and nothing समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, इसके अगली वीडियो में बनाएंगे. बट मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ.
जो भी आपको लगता है कि व्हाट यू आर मेंट टू बिकम, कि मैं ये बनने योग्य हूँ, ये बनने आया हूँ, वो पॉसिबिलिटी है आपकी व्हाट यू आर की, तो वो स्प्लिट नहीं है, वो जुड़ा हुआ है। समझे? कहीं आपको लगे यार ये तो वही वाली बात बोल दी, व्हाट यू मेंट टू बिकम एंड व्हाट यू मेंट टू बिकम इज द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट यू आर। इट इज नॉट अ स्प्लिट, इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, अब वो जो जर्नी है अब ये है व्हाट यू आर, व्हाट यू मेंट टू बिकम। अब इसके बीच व्हाट इज स्टॉपिंग यू, दैट इज द क्वेश्चन, कि तुम्हें रोक क्या रहा है। अगर आपने खुद को जाना है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को ये चीज़ रोक रही है, रेसिस्टेंस है, मैं एक्शन नहीं ले पाता हूँ, या मैं समझ नहीं पाता हूँ, या मैं बोल नहीं पाता हूँ, या मैं लिख नहीं पाता हूँ, या मैं किसी से मैं शर्माता बहुत हूँ, या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या फिर मेरे को अटैचमेंट के इश्यूज़ हैं, या फिर मेरे को कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। वो जो भी चीज़ है आप उसके, सपोज करो आपको एक चीज़ मिल गई, बट सपोज you have fear of failing. Now you know this about yourself. Now start reading. You, not the books. You can read the books, go and read the books, but see, जो भी आप किताब में पढ़े कि फियर के बारे में, इसके बारे में, जो भी आपका फियर है उसके अंदर आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, अप्लाई इट इन योर सेल्फ, सी इट इन योर लाइफ। ठीक है, खुद ही उसको एक्सपेरिमेंट, एग्जामाइन, एनालाइज करें अपनी लाइफ में, एंड फिर उसको एक्सपीरियंस करें। सो थिंग इज व्हाट यू आर, व्हाट यू मेंट टू बिकम, एंड व्हाट इज स्टॉपिंग यू। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा, देन जस्ट गो एंड टेक द एक्शन। नाउ टेकिंग एक्शन, हाउ सबकॉन्शियस प्रोटेक्ट्स यू, योर कंडीशनिंग्स, योर बिलीफ सिस्टम्स, योर होप्स, योर डिज़ायर्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जो पिछली वीडियो में मैंने इनर वर्ल्ड की बात करी है, कैसे आप अपना इनर वर्ल्ड हील करते हैं, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता कि बाहर से चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, अंदर से यू बिकम समथिंग इनसाइड, एंड दैट इनर वर्ल्ड बिकम्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटर वर्ल्ड, एंड दैट्स हाउ यू अचीव द ग्रेट हाइट्स। ये आप पिछली वीडियो में जाकर प्लीज़ देखकर, इट्स अबाउट इनर वर्ल्ड। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज उसमें समझ आएगा आपको बिलीफ सिस्टम, फियर्स, डिज़ायर, कैसे आपका इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड को क्रिएट करता है। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट हैपन विदाउट डिजाइनिंग योर इनर वर्ल्ड, एंड दिस वीडियो is about inner world. So watch this video. Thank you so much for watching this video. Meet you into the next video with much crazy topics. Bye bye.